کوئٹہ کے علاقے ڈبل روڈ پر پولیس وین کے قریب دھماکے میں 2 افراد جاں بحق 21 زخمی ہو گئے۔ دھماکے کے بعد پولیس نے علاقے کو گھیرے میں لے لیا، جبکہ موقع سے شواہد اکٹھے کیے جا رہے ہیں۔ اس حوالے سے مزید تفصیلات حاصل کریں گے نمائندہ دنیا نیوز ابرار احمد نے ہمیں جوائن کیا۔ جی ابرار، کیا معلومات مل سکی مزید؟ بالکل کوئٹہ کے علاقے ڈبل روڈ پہ پولیس وین کے قریب جو ہے وہ دھماکہ ہوا۔ دھماکے کے نتیجے میں اب تک کی جو اطلاعات ہے اس میں 2 افراد جاں بحق جبکہ 21 افراد جو ہے وہ زخمی ہوئے ہیں۔ زخمی میں جو ہے پولیس اہلکار بھی شامل ہے۔ دھماکہ اس وقت ہوا جب یہاں سے پولیس کی وین جو ہے یہاں سے گزر رہی تھی، اور پولیس کے مطابق یہ بتایا جا رہا ہے کہ جو دھماکہ خیز مواد ہے وہ موٹر سائیکل میں نصب کیا گیا تھا، اور اس وقت یہاں سے پولیس کی وین گزر رہی تھی اس وقت جو ہے یہاں پر دھماکہ ہوا۔ دھماکے کے فوراً بعد جو ہے ریسکیو ٹیمیں اور سیکورٹی فورسز جو ہے وہ موقع پر پہنچ گئی اور علاقے کو گھیرے میں لے کر یہاں سے جو لاشوں اور زخمیوں کو یہاں سے سول اسپتال منتقل کیا گیا۔ اس وقت یہاں پر ٹریفک کو جو ہے دونوں طرف سے بند کیا گیا ہے، اور پولیس اور سیکورٹی فورسز جو ہے یہاں پر موجود ہے، اور یہاں پر جو ہے دھماکے کی جگہ سے جو ہے وہ شواہد اکٹھے کیے جا رہے ہیں۔ جی، گوادر کے علاقے کلمت میں فائرنگ سے 6 افراد جاں بحق ہو گئے۔ پولیس حکام کے مطابق تمام افراد گوادر سے کراچی جا رہے تھے۔ ایک شخص کا تعلق ملتان سے ہے۔ صدر مملکت آصف علی زرداری اور وزیر اعظم شہباز شریف نے مسافروں پر فائرنگ کے واقعے کی مذمت کی۔ صدر مملکت آصف علی زرداری نے کہا کہ دہشت گرد ملک کی ترقی اور صوبے کی خوشحالی کے دشمن ہیں۔ دہشت گرد بلوچستان کو ترقی کرتے نہیں دیکھنا چاہتے۔ وزیر اعظم نے کہا کہ شرپسند عناصر بلوچستان کے امن اور ترقی کے دشمن ہیں۔ شرپسند عناصر کے ملک دشمن عزائم کو کبھی کامیاب نہیں ہونے دیں گے۔ دفتر خارجہ نے اقوام متحدہ کے بعض ماہرین کے بیانات کو یک طرفہ اور غیر مصدقہ قرار دے دیا ہے۔ بعض UN ماہرین کے تبصرے متوازن نہیں۔ دہشت گرد حملوں میں شہری ہلاکتوں کو کم کر کے پیش کیا گیا۔ شرپسند عناصر کے جرائم اور انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں نظر انداز نہیں کی جا سکتی۔ ترجمان دفتر خارجہ شفقت علی خان کی نیوز بریفنگ کہا، دہشت گردوں کی مدد کے لیے سڑکوں کی بندش اور دیگر تخریبی سرگرمیاں ناقابل قبول ہیں۔ These elements are not mere protesters, but active participants in a broader campaign of lawlessness and violence. Their abuses of law and human rights violations cannot be ignored. These elements are operating in collusion with terrorists, evident from their coordinated efforts to obstruct state responses, including synchronized roadblocks, facilitating terrorist attacks. The latest proof of this nexus was their unlawful storming of the district hospital in Quetta, where they forcibly seized the bodies of 5 terrorists eliminated during the Jafar Express hostage rescue operation. This pattern of selective and disproportionate focus by the UN machinery serves no constructive purpose. Instead, it inadvertently emboldens extremist elements, fuels unwarranted media sensationalism, incites disorder, and most alarmingly, exacerbates societal polarization and fragmentation. وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی سے امریکہ کی قائم مقام سفیر نیٹلی بیکر نے ملاقات کی۔ قائم مقام امریکی سفیر نے جعفر ایکسپریس اور دیگر دہشت گرد حملوں کی مذمت کی۔ اس ملاقات میں پاکستان امریکہ تعلقات، باہمی دلچسپی کے امور سمیت 2 طرفہ تعاون بڑھانے پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ دہشت گردی کے خلاف باہمی اشتراک کار بڑھانے کے حوالے سے بھی گفتگو ہوئی۔ ملاقات میں رواں سال جون میں کاؤنٹر ٹیررزم ڈائیلاگ کرانے پر بھی اتفاق کیا گیا۔ محسن نقوی نے کہا کہ دہشت گردی بین الاقوامی مسئلہ ہے، عالمی برادری کو مل کر کام کرنا ہوگا۔ حکومت پاکستان دہشت گردوں کے خلاف بھرپور کارروائی کر رہی ہے۔ دہشت گردی کے خلاف جنگ کے ضمن میں ہمہ جہتی پالیسی تیار کی جا رہی ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا کہ نوجوانوں کو پروپیگنڈے کی جلخار سے محفوظ رکھنے کے لیے کونسل کو اپنا کردار ادا کرنا ہوگا۔ نفرتوں اور تقسیم کے رویے اسلامی تعلیمات کے منافی ہیں۔ اتحاد میں رخنے پیدا ہوئے، ان کو ختم کرنے کے لیے کام کر رہے ہیں۔ شہداء کی قربانیوں کو مدنظر رکھتے ہوئے ترقی کے راستے کا تعین ضروری ہے۔ علماء کرام اسلامی دفاعی ریاست کو مضبوط کرنے میں اپنا کردار ادا کریں۔ وہ اسلامی نظریاتی کونسل کی گولڈن جوبلی کے حوالے سے تقریب سے خطاب کر رہے تھے۔ اسلامی نظریاتی کونسل پر یہ بھاری ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ وہ خاص طور پر نوجوانوں کو منفی رویوں، غلط بیانیوں، جھوٹ اور پروپیگنڈے کی یلغار سے ان کو تحفظ فراہم کرنے میں اپنا کلیدی کردار ادا کریں۔ انتہا پسندی، نفرتوں اور تقسیم کے رویے اسلام کے اتحاد، اخوت اور بھائی چارے کے تعلیمات اور سوچ کے منافی ہیں۔ اسلامی نظریاتی کونسل نے ایک بڑا مضبوط بند باندھا۔ میں سمجھتا ہوں کہ آپ کی دیگر خدمات کے حوالے سے ایک بہت بڑی آپ کی خدمت ہے۔ سرفراز نعیمی صاحب شہید وہ شخصیت تھے جنہوں نے
दहशत गर्दी को खिलाफ इस्लाम करार दिया। क़याम पाकिस्तान के जो मकासद थे और हैं, और जिनके लिए हमारे आबा व अजदाद ने, बुज़ुर्गों ने, इस्लाफ ने अज़ीम कुर्बानियाँ, मैं समझता हूँ कि आज हम सब का फ़र्ज़ अवली है कि हम न सिर्फ उन अज़ीम शख्सियात और शहीदों की जो कुर्बानियाँ हैं उनको सामने रखें, हम कम से कम उस रास्ते पर चलना शुरू करें। दहशतगर्दी के अफसोसनाक वाक़े के बाद जाफर एक्सप्रेस का ऑपरेशन 16 दिन बाद बहाल कर दिया गया है। जाफर एक्सप्रेस अपने मुकर्रर करदा रास्तों से होती हुई कल शाम कोयटा पहुंचेगी। इससे मुतालिक मज़ीद तफसीलात जानिए पेशावर से आमिर जमील की इस रिपोर्ट में। 11 मार्च को दहशतगर्दी का शिकार होने वाली जाफर एक्सप्रेस का मुअत्तल ऑपरेशन एक नए अज़म के साथ दोबारा शुरू कर दिया गया। 16 दिन से मुअत्तल ऑपरेशन को दोबारा फ़ाल करने के लिए वफाकी वजीर बराए उमूर कश्मीर व सैफरान अमीर मुकाम भी पेशावर कैंट स्टेशन पहुँचे और दुआओं के साथ ट्रेन को रुखसत किया। इस मौके पर वफाकी वजीर का कहना था कि पाकिस्तानी हुकूमत और फौज ने तहैया कर लिया है कि दहशतगर्दों को कामयाब नहीं होने देंगे। मुल्क में दहशतगर्दी को खत्म करने के लिए सियासत से बालातर होकर इकदामात उठाने होंगे। रेलवे हुक्काम ने जो खामियां थी वो दूर करके ऑपरेशन बहाल किया है। इस तरह सिक्योरिटी और ये चीज़ें नहीं चलती, और अभी भी अगर कोई खामियां थी तो रेलवे हुक्काम ने इस पर सोच कर, फिक्र कर और उसको इम्प्रूव करने की भरपूर कोशिश की है। जाफर एक्सप्रेस में सवार होने वाले मुसाफिर का कहना था कि इन्हें पाक फौज पर पूरा भरोसा है कि वो आइंदा इस किस्म के वाक़यात नहीं होने देंगे। इकट्ठे हो और ये मैसेज हो कि हम में कोई डिवीजन, कोई तफरीक नहीं है, तो इंशाअल्लाह ताला फिर कोई इसका मुकाबला नहीं कर सकेगा और उस सोच वालों को शिकस्त होगी और पाकिस्तान को आगे ले जाने वालों की इंशाअल्लाह ताला फतह होगी। जाफर एक्सप्रेस आज पेशावर से 28 मुसाफिरों को लेकर कोयटा की जानब रवाना हुई है, जबकि इसमें मुख्तलिफ मकामात से कुल 280 के करीब मुसाफिर सवार होंगे। जाफर एक्सप्रेस कल शाम को कोयटा पहुंचेगी। मुस्तफ़ा आमिर कत्ल केस की बात करें तो मुलजिम अरकमगान के हवाले से तहकीकात जारी हैं। कायमा कमेटी बराए दाखिला की ज़ैली कमेटी के दूसरे इजलास की अंदरूनी कहानी सामने आ गई है। पुलिस और FIA समेत मुतल्लिका इदारों के अफसरान की कमेटी को केस पर ब्रीफिंग। मुलजिम के 20 से ज़ायद अकाउंट से अरबों रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग की गई और मुलजिम को सामान पहुंचाने वाली करियर कंपनीज को भी नोटिस किया गया। ज़ैली कमेटी के ज़राए के मुताबिक अरकमगान की गैर रजिस्टर्ड गाड़ियों की भी तहकीकात जारी हैं। इससे मुतालिक मजीद मालूमात हासिल करेंगे नुमाइंदा दुनिया न्यूज़ बिलाल नसीर ने कराची से हमें ज्वाइन किया। जी बिलाल, क्या मजीद पेशरफ्त हुई, क्या मालूमात मिली? जी बिल्कुल, ये कायमा कमेटी बराए दाखिला की ज़ैली कमेटी की अंदरूनी कहानी में अरगमान के 20 से ज़ायद अकाउंट्स का जिक्र किया गया है, जिसमें अरबों रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग की गई है, जिस पर जांच जारी है। इनके जो बैंक अकाउंट्स हैं, उनके खातों के हवाले से जो मैनेजर्स हैं, उनसे भी तफ्तीश करने का फैसला किया और उनको समन जारी किए गए हैं। FIA उनसे तफ्तीश करेगी। इसके साथ साथ जो कोरियर कंपनीज हैं या जो अरगमान से बैरून मुल्क से आके लोग मिलते रहे, उसके हवाले से भी तफसीलात हासिल की जा रही है और उनसे भी अब बड़े पैमाने पर तफ्तीश की जाएगी। अरगमान की गैर रजिस्टर्ड गाड़ियों की तहकीकात जारी है। एक्साइज के हवाले से 3 गाड़ियां अब तक उसके नाम पर है, मजीद की जांच की जा रही है। जी बिलाल नसीर, बहुत शुक्रिया, मालूमात दी आपने। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में उतार चढ़ाव के बाद ट्रेडिंग का अख्ताम ग्रीन जोन में हुआ। 100 इंडेक्स 34 पॉइंट्स बढ़कर 1,17,806 की नफसियाती हद पर बंद हुआ। इसी से मुतालिक मजीद मालूमात हासिल करेंगे नुमाइंदा दुनिया न्यूज़ हमजा गिलानी ने हमें ज्वाइन किया। जी हमजा, क्या तफसीलात हैं आज मार्केट से? जी बिल्कुल, आज कारोबारी हफ्ते का आखिरी रोज़ था। कल जुम्मतुल विदा की वजह से स्टॉक ट्रेडिंग नहीं होगी। एक लंबे रोल ओवर वीक की वजह से, एक लंबी तातीलात की वजह से आज सरमायाकार मोहतात रहा और इसी वजह से 100 इंडेक्स एक वॉल्टाइल सेशन का शिकार रहा और सिर्फ 34 पॉइंट इजाफे से मार्केट का अख्ताम हुआ है, पॉजिटिव जोन में हुआ है। लेकिन अगर बात की जाए प्रॉफिट टेकिंग की, करेक्शन की, तो ऑयल एंड गैस सेक्टर आज रेड जोन में गया है, बैंकिंग सेक्टर आज रेड जोन में गया है, जिसकी वजह से 100 इंडेक्स ने 1,17,500 का लेवल इंट्राडे लो टच किया था। 18,100 का इंट्राडे हाई था। बहरहाल सरमायाकारों ने एक नई पोजीशन नहीं ली क्योंकि भारी लेवरेज पोजीशन का दबाव भी था। अप्रॉक्सीमेटली 25 से 30 अरब रुपए भारी लेवरेज पोजीशंस के दबाव की वजह से एक नई पोजीशन नहीं ली, जिसकी वजह से डिप साइड का एक ये सेशन रिकॉर्ड किया गया। वॉल्यूम जो है वो 35 मिलियन के रिकॉर्ड किए गए। मजमूई तौर पे स्टॉक एक्सचेंज आज मिले जुले रुझान के साथ पॉजिटिव जोन में बंद हुई है। दूसरी जानिब अगर सोने की कीमतों की बात की जाए तो तारीख की बुलंद तरीन सतह पर सोने की कीमतें पहुँच गई हैं। 3,21,000
की नफसाती हद क्रॉस कर चुका है। 24 कैरेट फी तोला सोना इंटरनेशनल मार्केट के अंदर सोना तारीख की बुलंद तरीन सतह पर है, जिसकी वजह से 10 ग्राम और 24 कैरेट सोना पाकिस्तान की तारीख में बुलंद तरीन सतह पे रिकॉर्ड किया जा रहा है। साबिक़ा तमाम रिकॉर्ड सोने की कीमतों ने तोड़ दिए हैं। सही, हमजा गिलानी, आपने मालूमात दी, आपका बहुत शुक्रिया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ कहते हैं कि कर्ज़ों से कौमें तरक्की नहीं करती, दुआ है कि IMF का मौजूदा प्रोग्राम आखिरी हो। कौम को कर्ज़ों की ज़िंदगी से जान छुड़ाना होगी, आखिरी दम तक आपके हुकूक की जंग लड़ता रहूँगा। IMF प्रोग्राम से मईशत में इस्तेहकाम आता है। पाकिस्तान की मईशत मुस्तहकम हुई, 3 हफ्ते में 34 अरब रुपए खजाने में आए हैं। ये जो IMF का प्रोग्राम है, मेरी अल्लाह ताला से दुआ है कि ये पाकिस्तान की तारीख़ का आखिरी प्रोग्राम हो, क्योंकि IMF के प्रोग्रामों से कौमें तरक्की नहीं करती। IMF के प्रोग्राम से कौमें अपनी इकॉनमी को स्टेबल कर लेती हैं। आपको एक दो बातें बताना चाहता हूँ। यू मस्ट नो कि हमारे कर्ज़े 77 साल में कितने बढ़ चुके हैं। मैं इंशाअल्लाह अपनी जान लड़ाऊंगा और अपनी आखिरी हद तक मैं कोशिश करूंगा कि पाकिस्तान को कर्ज़ों से निजात दिलाकर पाकिस्तान को अपने पाँव पर खड़ा करूं। उसके लिए मैं अपनी जान लड़ाऊंगा, आपसे वादा करता हूं, और मैं इंशाअल्लाह मैं आपको मायूस नहीं करूंगा। पिछले 3 हफ्तों में 34 अरब रुपए खजाने में आए। किस तरह? ये सुन ले ज़रा बात। अरबों नहीं, खरबों के मुकदमात अदालतों में है। वज़ीर-ए-आला पंजाब की ज़ेर सदारत सूबाई काबीना का इजलास हुआ, जिसमें स्पेशल अफराद, बुजुर्ग और तालिबा के लिए मुफ्त सफ़र की सहूलत, जिनसी जराइम की रोकथाम के लिए स्पेशल इन्वेस्टिगेशन यूनिट्स के क़याम और ज़िला भक्कर में एयर एम्बुलेंस सर्विस के लिए एयर स्ट्रिप की तामीर के लिए फ़ंड्स की मंजूरी दी गई। भक्कर और बहावल नगर में एयरपोर्ट बनाने का भी फैसला हुआ। इजलास में पंजाब की एयरलाइन सर्विस के आगाज़ की तजवीज़ का जायज़ा लिया गया। वज़ीर-ए-आला मरियम नवाज़ ने चिकन के निर्ख कम करने के लिए मौसर इक़दाम की हिदायत की। ट्रैफिक चालान, जुर्माने की वसूली यकीनी बनाने और अदम अदायगी पर ज़ीरो टॉलरेंस पॉलिसी अपनाने की हिदायत की। वज़ीर-ए-आला पंजाब का कहना था कि शहरियों ने निगहबान रमज़ान पर निहायत मुस्बत रिस्पॉन्स दिया। 25,64,000 घरानों को निगहबान रमज़ान के चेक मिल चुके। वज़ीर-ए-आला मरियम नवाज़ ने ईद उल फितर पर अशिया खुरनोश के निर्ख पर कंट्रोल रखने की कड़ी हिदायत की। कहती हैं, पहली बार रमज़ान में कीमतें कंट्रोल में रहीं, लाइनें लगी, ना ही कोई धक्कम पेल हुई। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब और रशियन फेडरेशन के नायब वज़ीर-ए-आज़म की मुलाकात हुई। दोनों रहनुमाओं ने इक़्तिसादी तजारती ताल्लुकात और सरमायाकारी मजबूत बनाने के अज़्म का इआदा किया। वज़ीर ख़ज़ाना ने रूस के साथ इक़्तिसादी और तजारती ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत बनाने के लिए पाकिस्तानी अज़्म का इज़हार किया। दोनों रहनुमाओं ने तवानाई, तजारत और सनती ताउन के शुबों में ताल्लुकात को वुसअत देने पर जोर दिया। मुलाकात में तवानाई के शुबों में ताउन को मजबूत बनाने पर गुफ्तगू हुई। पाकिस्तान ने खाम तेल की खरीदारी और तेल और गैस की तलाश में सरमायाकारी को बढ़ाने में दिलचस्पी का इजहार किया। वज़ीर ख़ज़ाना ने पाक रूस फ्रेट पायलट ट्रेन मंसूबे को अहम करार दिया। मंसूबा ईरान के शुमाल जनूब ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर के तहत 31 मार्च को शुरू होगा। वज़ीर ख़ज़ाना ने मुलाकात के दौरान रूस के ताउन से पाकिस्तान में एक नई स्टील मिल्स के क़याम के हवाले से भी गुफ्तगू की। अपोजिशन लीडर उमर यूब कहते हैं कि जेल में सुप्रिटेंडेंट ने हमारी बानी से मुलाकात नहीं होने दी। फॉर्म 47 वाली हुकूमत का फोकस सिर्फ तहरीक इंसाफ को दबाना है। अडियाला जेल के बाद मीडिया से गुफ्तगू करते हुए शिबली फराज का कहना था कि आज अदालती अहकामात की तौहीन हुई। अदालती अहकामात के बावजूद बानी से मुलाकात नहीं कराई गई। अल्लामा राजा नासिर अब्बास बोले कि अपने वतन को बचाने के लिए साबित कदम रहेंगे। मुल्क को सिर्फ बानी PTI ही मुत्तहिद कर सकते हैं। लाहौर हाई कोर्ट में 2 साला मुखवी बच्चे की अदम बाजियाबी के केस की समाअत हुई। DPO शेखुपुरा बिलाल जफर शेख अदालत में पेश हुए। अदालत ने DPO शेखुपुरा को बच्चे की बाजियाबी के लिए 7 अप्रैल तक मोहलत दे दी। जस्टिस अली ज़िया बाजवा ने तंजीला बीबी की दरख्वास्त पर समाअत की। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब कहते हैं कि गवर्नर सिंध मेरे बड़े हैं, मैं गवर्नर साहब का वकील भी रहा हूं। वो किसी और के कहने पर बयानबाजी करते हैं, पता नहीं कौन उनसे बयान दिलवा रहा है। मैं जो बात करता हूं गवर्नर साहब नाराज़ हो जाते हैं, वो फिर शिकायतें करते हैं। कामरान टेसौरी खुद कहते हैं कि मेरे पास आ जाओ, इख्तियारात दूंगा। जो शख्स इख्तियारात का कह रहा था, अब वो इख्तियारात मांग रहा है। वो कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। मेरे बड़े हैं गवर्नर साहब, मैं उनको बिल्कुल छोटे भाई की हैसियत से उनका वकील भी रहा हूँ। किसी कहने पे बयानबाजी कर लेंगे। कोई एडवाइस करना चाहूँगा कि पता नहीं कौन आपको पंप करके इस तरह की स्टेटमेंट्स आपसे दिलवा लेता है, या मैं फिर बात करता हूँ गवर्नर साहब नाराज़ हो जाते हैं, शिकायतें लगती हैं। गवर्नर साहब ने खुद मुझे कहा कि मेरे पास आ जाओ, मैं सारे इख्तियारात दे दूँगा। तो जो शख्स मुझे कह रहा था मैं तुम्हें इख्तियारात दिला दूँगा, वो अब अपने लिए इख्तियारात मांग रहे हैं।
दावे कुछ, अमल दरामद कुछ। बिजली की कीमतों में मामूली कमी। IMF की जानिब से बिजली टैरिफ में 1 रुपये कमी की इजाज़त दी गई है। रिलीफ बिजली यूनिट पर बुनियादी टैरिफ की मद में दिया जाएगा। हुकूमत की जानिब से बिजली की कीमतों में नुमाया कमी का कहा गया था, लेकिन अब सूरत हाल ये सामने आई है कि सिर्फ जो 1 रुपया है उसकी कमी से मुतालिक बताया जा रहा है और कहा यह जा रहा है कि IMF ने 1 रुपया कमी की इजाज़त दी है बिजली टैरिफ पर और रिलीफ बिजली यूनिट पर बुनियादी टैरिफ की मद में दिया जाएगा। लेकिन इससे पहले कुछ और दावे किए जा रहे थे, एक बड़ा पैकेज देने की बात की जा रही थी, लेकिन अब सूरत हाल जो है वो कुछ और तरह से अनफोल्ड हुई है। ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद अदील वड़ाइच हमारे साथ मौजूद है, मजीद मालूमात उनसे लेंगे। अदील, क्या बस IMF की प्रेशर की वजह से जिसका वादा या दावा किया जा रहा था वो रिलीफ नहीं दिया जा सका? क्या मालूमात है आपके पास? देखिए, जो हुकूमत ने दावा किया था, अगरचे हुकूमत ने इसको वाज़ेह अंदाज में खुद पब्लिकली तो नहीं कहा था कि वो 7 से 8 रुपए तक की कमी करेंगे, लेकिन हुकूमती ज़राए ये बता रहे हैं कि 3 प्रपोजल तैयार की गई थी। एक 1.5 रुपए की प्रपोजल थी, एक 2 रुपए तक की प्रपोजल थी, एक 1 रुपए फी यूनिट तक की प्रपोजल थी। लेकिन अभी जो इनिशियली जो अप्रूवल मिली IMF से वो 1 रुपया, हुकूमत जो दावा कर रही है वो 1 रुपए 70 पैसे फी यूनिट है, जबकि जो IMF के जो आज पाकिस्तान में स्पोक्स पर्सन है उनकी जानिब से जो दावा किया गया है, उनकी जानिब से जो कहा गया है वो ये कहा गया है कि 1 रुपया फी यूनिट तक की जो है वो इजाजत दी गई है पाकिस्तान को फी यूनिट बिजली की जो कीमत है वो उसमें कमी के हवाले से। लेकिन हमारे जो जराए हैं वो ये कह रहे हैं, हुकूमती जराए ये कंफर्म कर रहे हैं कि जो 4 रुपए तक की जो एडजस्टमेंट है ये पाइपलाइन में है और ये जो 4 रुपए तक की जो मजीद एडजस्टमेंट होगी ये बेसिक टैरिफ में नहीं होगी, बल्कि ये एडजस्टमेंट जो है समाही बुनियादों पे होगी और ये समाही एडजस्टमेंट की मद में ये आइंदा कुछ अरसे में ये रिलीफ दिया जाएगा। तो इस वक्त तक जो हुकूमत ये कह रही है हमने 1 रुपया 70 पैसे तक का रिलीफ ले रखा है, इसकी अप्रूवल ले रखी है, लेकिन IMF ये दावा कर रहा है कि ये 1 रुपये तक की हमने इजाजत दी है। तो बहरहाल एक बात तो अभी तक समझ आती है, जो जराए ये कंफर्म कर रहे हैं दोनों साइड के, वो ये कह रहे हैं कि ये मुख्तलिफ प्रपोजल बनाई गई थी और ये मुख्तलिफ फेजेस में रिलीफ जो है ये पास ऑन जो है वो किया जाएगा। एक आज जो जिस तरह खबर सामने आई ये बुनियादी यानी बेसिक टैरिफ में है और जो आगे जो 4 रुपए तक का रिलीफ है जो IPP से रिनेगोशिएशन हुई है उसकी मद में जो रिलीफ होगा वो रिलीफ जो है वो बेसिक टैरिफ में नहीं होगा, बल्कि वो जो तिमाही एडजस्टमेंट होती है उसकी मद में वो एडजस्ट किया जाएगा। तो यूं अगर देखा जाए, इसका ओवरऑल इम्पैक्ट देखा जाए और चंद महीनों की कैलकुलेशन, अगले आने वाले चंद महीनों की कैलकुलेशन हम देखते हैं तो वो रिलीफ जाके तकरीबन 6-7 रुपए या 7.5 रुपए तक जा बनता है, लेकिन वो किसी एक मद में नहीं है बल्कि वो मुख्तलिफ प्रपोजल्स की मद में है। जी सही। अदील, जैसे आप बता रहे हैं कि 6-7 रुपए बन सकता है, हम जब भी बिजली की बात होती है तो इतने इसमें कंफ्यूजिंग दादोशुमार होते हैं, किस मद में है, बेसिक है, नहीं बेसिक है, कि आम बंदे को समझ नहीं आती कि रिलीफ मिल क्या रहा है। थोड़ा सा अगर आप नाज़रीन के लिए थोड़ा सा इसको आसान करके बता दें कि एक तो इसका इतलाक कब से होगा और ये जो 1 रुपया है जिसकी फिलहाल मंजूरी दी गई है ये कब से मिलना शुरू हो जाएगा कम अज़ कम? देखें, इसमें चूंकि इसके लिए एक रेगुलेटरी अथॉरिटी है, ये मामला फिर नेपरा में जाता है। नेपरा में जब दरख्वास्त दायर होती है और नेपरा में हियरिंग के बाद फिर वहाँ से हतमी जो इसकी अप्रूवल होती है उसके बाद से रिलीफ मिलना शुरू होता है। ये आपने बिल्कुल ठीक कहा कि इतने कंफ्यूजिंग फिगर्स होते हैं ये कि आज तक यही नहीं कोई हुकूमती ओहदेदार बता सका कि जो बुनियादी जो बेसिक यूनिट है वो है कितने का। एक मफरूजे पे मबनी बात कर दी जाती है जी कि 40 रुपए से लेकर 70 रुपए तक जाता है, लेकिन उसमें समाही एडजस्टमेंट की मद में जो इम्पैक्ट आता है वो क्लैरिटी से नहीं बताया जाता। खुद हुकूमत के लोग जो हैं ये क्लैरिटी से नहीं बता सके। इवन अब ये जो रिलीफ देने का मामला है, इस मामले को भी इतना कंफ्यूजिंग कर दिया गया है कि ये जो रिलीफ देने का जो मामला है इसमें भी रिलीफ देते हुए भी हुकूमत जो है खुद पे क्रिटिसिज्म का सामना कर रही है कि एक जानिब वो कह रही है कि हमने पहले कहा कि 2 रुपए तक का IMF के साथ शेयर किया, फिर अब हुकूमती जराए कह रहे हैं 1 रुपए 70 पैसे तक का मामला जो है ये हमने इस पे रिलीफ की मंजूरी ले ली है, लेकिन IMF कह रहा है 1 रुपए तक है। इसमें वजारत खजाना के हुकाम जो हैं उनका कुछ मौकफ होता है, वजारत तवानाई के जो हुकाम होते हैं
کا کچھ موقف ہوتا ہے. تو لیکن اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ خود کنفیوژن پیدا کرنے میں حکومت جو ہے اس نے کوئی کسر نہیں چھوڑی. لیکن بہرحال اب آنے والے جو مہینوں کے بل ہوں گے اس میں بیسک جو فی یونٹ جو ریلیف ہے وہ تو بہرحال اب مل جائے گا, لیکن وہ 1 روپے سے لے کے 1 روپے 70 پیسے تک ہوگا. لیکن وہ جو کہا جا رہا تھا نا کہ 6 سے 7 روپے تک کا ریلیف یا 8 روپے تک کا ریلیف, وہ یکمشت نہیں تھا. اس میں میں اسی سے متعلق میں پوچھنا چاہ رہی تھی کہ حکومتی ذرائع کیا کہتے ہیں کہ جس وہ اگلے پیکیج کا اب لارا لگا رہے ہیں وہ کب تک توقع رکھنی چاہیے عوام کو, کب تک مل سکتا ہے یہ جو 4, 5 یا 6 روپے کا مزید آپ کہہ رہے ہیں؟ دیکھیں جو معاملہ ہے نا اگلے 4 روپے تک کا, ایک تو یہ ہو گیا 1 روپے تک جو آئی ایم ایف نے کہا, حکومت کہہ رہی ہے 1 روپے 70 پیسے تک کا ہے. لیکن یہ اب نیپرا میں معاملہ جائے گا, اس میں 1 مہینہ لگ سکتا ہے, 1 مہینہ یعنی اب یہ اگلے بلوں تک جو ہے اس کا امپیکٹ آتا دکھائی دے رہا ہے. لیکن جو اس کے بعد مزید اس میں ہم اگر 4 روپے مزید فی یونٹ کی اگر بات کرتے ہیں تو اس میں یہ وہ ریلیف ہوگا جو آئی پی پیز کے ساتھ ہم نے نیگوشیٹ کیا, اور یہ جو 5-6 آئی پی پیز نے اپنے معاہدے ختم کیے, اور یہ 2800 میگا واٹ کے جو آئی پی پیز تھے یہ معاہدے ختم کرنے کا جو ریلیف ہے یہ سماہی ایڈجسٹمنٹ میں کیا جائے گا, جس میں وہ جو سماہی ایڈجسٹمنٹ کرنے کے بعد پھر یہ جو نیپرا سے اس کی منظوری لی جاتی ہے اور نیپرا کے فیصلے کے بعد جو ہے یہ کیا جاتا ہے. تو اس میں بھی ابھی نیپرا سے جب حتمی طور پہ رجوع کیا جائے گا, اس میں درخواست دائر کی جائے گی, تو یہ ریلیف آنے والے 2 سے 3 مہینوں تک جا سکتا ہے. لیکن ایک بات سمجھ آتی ہے ساری کیلکولیشن کو دیکھنے کے بعد کہ جو اگلے مالی سال کا جو بجٹ ہے اس وقت تک کم از کم حکومت یہ چاہتی ہے کہ یہ جو ریلیف ہے جس میں وہ دعویٰ کر سکے, دیکھیں جی ہم نے 6 سے 7 روپے تک کا ریلیف دے دیا ہے مختلف مد میں, یعنی بیسک ٹیرف کی مد میں اور سماہی ایڈجسٹمنٹ کی مد میں. کیمولیٹیو اگر بات کریں تو اگلے بجٹ تک اس کا امپیکٹ آتا دکھائی دے رہا ہے. عدیل برائچ, آپ ہمیں تمام تر تفصیلات فراہم کر رہے تھے, آپ کا بہت شکریہ. نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی. مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے دنیا نیوز.